Okay. Actually, I wanted to tell some facts. I've been thinking about it from a long time. Um, I didn't know where to start, how to start. So I have some points noted down. I thought I'll get a chance to, discuss with somebody like media person. Then now since I follow Arnab Goswami, and I think this is the time to share a few thoughts of mine, what I think about, Sushant Singh's so-called suicide. Everybody, whole world knows about event. What happened is not suicide; it's pre-planned, cold-blooded murder. So, firstly, what I wanted to say is, Sushant's father was saying he sent an SMS to the Mumbai police, like designated officer, um, like about threats he was getting, and he complained about everything. He need protection or see to the people who are threatening him, but they didn't do anything, right? And I heard they transferred the person who was attending that complaint, and he changed 50 SIM cards, mobile numbers. So, what would be the reason? It's not just Ria there, right? It's not just Ria. They are diverting the case for, it, I can't say they're diverting, it's pre planned. So, this is part of the game to divert the case towards money laundering, right? So, before itself, they already planned everything. Whomever, I don't know who did it, whomever did it, they pre planned everything already. So, whomever was threatening him since February, maybe before that, you never know. But he kept changing the SIMs. That means he informed his family, they spoke to them. But my question to the family is, why you guys didn't come and stayed with him when he was getting the threat? His father was back in Patna, his sister is there, but even everybody left him alone there. Why? Did you guys also went through threatening, like not to come to Mumbai or not to stay with Sushant? Is that so? I'm wondering, how can you leave your son when you know that somebody is threatening him? It's weird. My understanding is like somebody must have threatened you guys too, or threatened him not to involve the family or not to call the family into Mumbai, right? To live with him. Thirdly, the third point is, I hear like Sushant was asking his brother-in-law to come and take him with him, right? What made him to tell like, come and take me? Why? Can't you go on yourself? Who says that? Somebody who is held hostage? Right? That's what it means. Somebody is, locked him up somewhere where he can't go out, do anything. In that case, he can call somebody and ask them to come and please rescue me, right? I think so. Okay, let's see. Next one. When Ria left the house, she called Sushant's sister and told her that I'm leaving the place. He's not feeling good. You can come and take care of him, right? The sister comes in.
she speaks to Sushant, calm him down, whatever. I have no idea. But when she go back, she goes alone. Why she didn't take Sushant? Why? Did his sister was called there to threaten her? Not to involve too much with him or whatever. Stay away from this whole matter. What was it? She just came, stayed for 2-3 days or a week, 5 days. She went off. She was just gone. Why? She could have taken him with her because whole family knew that he had threat calls, so many threat calls, and somebody was behind him very badly. जैसे कि बोलते हैं ना, हाथ दो के पीछे पड़ जाता है, तो somebody was there already. So why she didn't take him with her? She had a chance to save him. She missed it. Why? Were you got threat calls or somebody threatened you not to get involved there? Did somebody threaten you to harm your family? What was it? Really, I've been thinking and thinking and thinking. This is what I can summarize with all these points when I go through. I note down everything, and when I sit and think, why is this done this way? Why is this done that way? Why can't be this way? But end of the day, damages happen. It hurts me. It really hurts me. I feel really bad for that boy. I lost my brother. He committed suicide too. Committed suicide too, long back. I know the procedures, how they do it. I know everything about it, how it goes. In this case, police comes in, and that too I saw on the media that some guy who is wearing police uniform is also wearing the security guard uniform in another picture. Such a joke. That means it's already planned, and they did everything. They played a police drama that this police is coming, they're taking videos, this, that, and all. And they took the body, right? Then, when the original police came in, what did they do? They didn't collect any evidences. Nothing has been done. They just left everything, like unorganized, like the place was not sealed. Everybody like XYZ is entering the place. And the whole thing is a mess, big mess. And I'm thankful to Mumbai police for one thing. Yes, I said it. I'm thankful to Mumbai police for one thing. They just came out and announced it's a suicide. That created a buzz, like, what? Right? Nobody believed it. Even I didn't believe it. How? Not possible. Not possible at all. That means something is fishy, right? The Mumbai police did the statement, he committed suicide. Within 15-20 minutes, okay, fine. They thought everybody is going to believe, and whatever they are doing can be done very smoothly. Very smoothly. Nope. People are very intelligent. Way too intelligent. You just can't believe how people are. Everybody watches Crime Patrol, everybody watches CID, each and everybody watch Fear Files, whatever, even from US channels, everybody watch. So we know how things goes. You can't just
blindly say anything and people will just agree for whatever you say. No, that's not going to happen anymore. And for that, I'm grateful for them announcing suicide right away, without doing any FIR or any other investigations, anything. So I'm very thankful for that. And that's the, it's kind of ignition for the truth, you know. Unknowingly, they just like बोलते हैं ना, चिंगारी डाल दिए वो लोग, unknowingly डाल दिए. Knowingly, no, they wouldn't do that, but unknowingly डाल दिए. I mean, they must have gone by somebody else's words, somebody's the whole plotter, like सूत्रधारी बोलते हैं. So he must have told him to announce like that. So he did it. But that's the best thing. जो भी क्राइम करते हैं तो वो कोई ना कोई सुराग छोड़ देते हैं. इन लोगों ने तो पूरा स्टेटमेंट दे दिया बोल के कि सुसाइड है, राइट. वो स्टेटमेंट में ही सच बता दिए ये लोग कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है. बी केयरफुल, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है. पकड़ सके तो पकड़ लो, राइट. कैच मी इफ यू कैन, that's what they said. So here goes Arnab Goswami, Times Now, all the Janta, and hats off to Kangana Ranaut. She did a great job, and I admire her. I don't care what people say, whatever. I'm kind of a girl like that, like, you know, I talk to people on the face. Truth is truth. That's it. Nobody can replace that truth. Okay, so that happened. That means they gave a clue that this is not suicide. And what I think is, people were saying like they saw him jogging in the morning and he had a glass of juice. Bullshit. किसको बेवकूफ़ बनाते हो ना. उसका बॉडी देख के लग रहा है कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पहले मर गया है. जो बॉडी 10-12 घंटे पहले मर गया है तो 10 बजे कैसे जॉगिंग जाएगा? हो ही नहीं सकता. इसका मतलब 10 बजे अगर जॉगिंग गया है तो मुझे लगता है कि 10 से 1 बजे के बीच किसी ने उसको पीट के वहाँ पे डाल दिया, किसी को पता नहीं चली. नो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, उनके पास एक प्यारा सा डॉगी था. आई मीन है, कहीं रखे होंगे उसको. डॉगी है, राइट. जो इतना बड़ा डॉगी, इतना हेल्दी डॉगी, इतना पावरफुल डॉगी, ये लोग सुशांत को पीट रहे होंगे. बोलते हैं डॉग सेंस करता है, राइट. सेंस करता है. कोई बैड इंटेंशन से घर आते हैं या ओनर को कुछ होने वाला होता है तो डॉग्स सेंस करते हैं. तो डू यू थिंक dog would have let somebody to kill him? No. What about the dog? What they did with him? They might have drugged him. Dog को भी, उसको भी कुछ नींद के दवा या कुछ दे के सुला दिए होंगे, तभी जाके उसने आवाज़ नहीं किया. ये लोग कुछ भी कर रहे थे, राइट. अगर उसे दूसरे कमरे में भी बंद किया होते तो he would have barked many times, severely, vigorously barked, right. और दूसरा चीज़, पूरा दरवाजे को नोच देगा खोलने तक, क्योंकि वो he can sense it, something is going wrong with his master or owner or father, whatever. नोच देगा पूरा. दरवाजे के पीछे पूरा उसका उंगली का होगा निशान, पाँव का, ऐसा ऐसा करता है तो, राइट.
किसी ने देखा, नोटिस किया? दूसरे रूम में जहाँ पे भी बंद था, ठीक है, कहाँ गया वो? डिड एनीबडी टेस्टेड दैट डॉग? डज ही ड्रग्ड और नॉट? एनीबडी? किसी ने भी क्वेश्चन किया? किसी ने भी जाके देखा? मुंबई पुलिस का तो भूल ही जाओ, वो लोग FIR नहीं किए, उन्होंने ये किया क्या, वो किया क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब करने का प्लान में है ही नहीं ना. When they don't have it in the plan, why would they do it? And you don't even expect that they're going to do it, right? बेवकूफ़ी है यार. आज मैं देख रही हूँ, रोज़ फॉलो करती हूँ, रोज़ हर चैनल में यही पूछते हैं, मुंबई पुलिस ने ये किया क्या, वो किया क्या. अरे यार, तुम लोगों का क्वेश्चन सही है, क्यों करेंगे? वहाँ पहले से बोला गया है मत करो, तभी तो सुसाइड अनाउंस किए. फिर से आप वही पूछोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है. अभी हमको ये करना है, एक एक सच कुरेद के निकालना है. एक एक सच को कुरेद के निकालो. जिनको जो भी पता है वीडियो बना के डालो, फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, या अपना यूट्यूब पे डालो. कुछ भी डिलीट करेंगे, करने दो, कोई बात नहीं, करने दो. वही वीडियो फिर से अपलोड करो, कहीं और अपलोड करो, किसी और से कराओ, सेम वीडियो कराओ. जो आपका बोलना है आपका बंद करेंगे, किसी और से बुलाओ. एक लैंग्वेज में बंद करेंगे, दूसरे लैंग्वेज में करो. सच को कोई नहीं दबा सकता, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता. ट्रूथ फाइंड्स इट्स ओन वेज, इट विल कम आउट एंड इट शुड कम आउट. CBI आने दो, CBI को आने दो, तब इन लोगों को समझ में आएगी. कितने लोग CBI में भी क्या करेंगे ये लोग, पता है, मैं बताती हूँ. जो ऑफिसर्स आएंगे उनको इतना परेशान कर देंगे, परेशान मतलब इतना परेशान, उसका घर का किसी और को मेंबर को उठा देंगे, उठा के उनको बोलेंगे कि केस छोड़ो, बंद करो. ऐसा हरास करेंगे उन लोगों को. दे गोना डू दिस. उनको भी परेशान करेंगे, क्योंकि अभी ये तो खुलेआम हो गया, सबको पता चल गई. एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी नोज. महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, मुंबई पुलिस, lot of Indian Bollywood actors, producers, everybody is involved in this. Everybody. ये तो खुला सच हो गया. आप लोग चुप रहो, मुंह मत खोलो. रोज़ ओके ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ. कोरोना शुरू हुआ, राइट? सब ने अपना इतना वीडियो बना के डाल रहे हैं. कितने लोग डाले? अमिताभ बच्चन जी से लेके छोटे मोटे एक्टर्स तक सब लोग वीडियो बना रहे हैं घर पे बैठ के. ये मत करो, वो मत करो, राइट? इतना बात किए, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे जल्दी नहीं जाएगा, हम लोग काम पे नहीं जा पाएंगे. Many things happen like that. Many people sat at home making so many videos, everything. Where are they? Why can't they make a video, a small video, and put on their walls? Why? Why can't they do it? चुप हो गए. अनुपम खेर जी, कहाँ हैं आप लोग? अमिताभ बच्चन जी, आप कहाँ चले गए? आपको ट्वीट का नंबर भूल जाते हो यार, आप उसके लिए इतना परेशान हो जाते हो, ट्वीट का नंबर के लिए. जब आप उसके लिए इतना परेशान हो सकते हो, ये एक लड़का, अगर वो आपका बेटा होता तो आप क्या करते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. अमित जी, सुशांत आपका बच्चा होता, क्या करते? मैं ये नहीं बोलूँगी अभिषेक के साथ ये होता तो आप क्या करते. नो, नहीं बोलूँगी. ही इज़ अनदर इंडिविजुअल. अगर सुशांत आपके बच्चा होता, क्या करते? अनुपम खेर जी, आपका बेटा होता तो आप क्या करते? ऐसे ही बैठे रहते? सुभाष कई जी, आप भी ऐसे बैठे रहते? क्या करते आप लोग? अक्षय कुमार का भाई होता तो क्या करता? शाहरुख खान आपका ही भाई होता, वो तो आपका घोल के पी गया था बेचारा बच्चा. आपके ऊपर कितना इज्जत रखा था,
आपको आइडल मानते हैं सब लोग। मैं मती मारी गई थी हम लोगों की यार। आप लोगों को कितना प्यार दिए, पूरे जनता ने इतना प्यार दिया आप लोगों को। क्या करते हो आप लोग? व्हाट यू गाइस आर डूइंग देयर? हाँ, व्हाट यू गाइस आर डूइंग? शिट। इतना प्यार, इतना प्यार भगवान को भी देता ना, भगवान आ जाता मान के। आप लोगों को जाके प्यार दिए, आप लोगों का मूवीज़ के लिए, आप लोगों का शोज़ के लिए, कुछ भी आप लोग करते हो, पूरा इंडिया का जनता, दुनिया का कहीं पे भी रहेंगे आपके लिए खड़े हो जाते हैं। यही है आप लोगों का। दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टुवर्ड्स योर जनता, पब्लिक एंड टुवर्ड्स योर कंट्री। डू यू गाइस इवन बिलोंग टू इंडिया? डू यू गाइस इवन बिलोंग टू इंडिया? Shame on you guys. Shame. Shame means shame. Shame को भी shame आ जाएगा, उतना गिर गए आप लोग। जिस दिन सच बाहर आएगी ना, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा आप लोगों को डूब मरने के लिए। ऑलरेडी कोई लोग जा रहे हैं यहाँ से, इंडिया से निकल रहे हैं काम के सिलसिले में। काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, शूटिंग शुरू हो गई, कुछ और बहाने। किसी को तबीयत ठीक नहीं है, किसी को सर्जरी कराना है, किसी को ट्रीटमेंट कराना है, निकल रहे हैं एक एक करके। सब निकल जाएंगे। कहाँ जाके रहोगे? कहीं पे भी जाओगे, इंडिया वापस आना ही पड़ेगा। सीबीआई नहीं लेंगे ना, नहीं लेने दो, जनता के हाथ में दे दो, जनता देख लेगी। गिव इट टू जनता। वी हैव केपेबल पीपल in the public, a lot of capable people than you guys, lot of capable investigators, lot of capable thinkers, creativity people, lot many. Such a shame, man. Shame on everything. Okay. ये लोग लेके बैठ गए हैं। दिशा का मर्डर हुआ तो उसका सच सुशांत को पता था, इसके लिए उसे मार दिए। सीरियसली 50 सिम कार्ड का कथा तो फरवरी से चल रही है, राइट? एम आई राइट और नॉट? राइट, 50 सिम कार्ड्स का फरवरी से चल रही है। इसका मतलब कुछ और ही था। दिशा का बाय एक्सीडेंटली हो गया होगा, नशे में ये लोग कुछ कर दिए। ओके, दिशा का बॉडी का आती हूँ मैं। दिशा जब मर गई उस दिन इन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए लेके नहीं गए। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम में ले गए। क्यों? कहाँ छुपा के रखे थे उसको? क्या कर रहे थे? क्या करने के लिए रखे थे 2 दिन? तो 2 दिन तक पुलिस कर क्या रही थी? 2 दिन तक ढूंढ नहीं पाई, या पुलिस वाले खुद ही रखे थे कहीं पे ले जाके? किस पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस। whom do you work for? The country or the politicians? If you guys are working for politicians, you should wear white and go to their houses or their offices, not in the police station. Don't stay in the police station with that uniform. No. यूनिफॉर्म पहनते हो तो नीयत से काम करो। नहीं कर सकते हो, वाइट पहनो, गेट द हेल आउट ऑफ देयर। समझे? हो सकता है उन लोगों ने भी, मुंबई पुलिस भी साथ दिए होंगे खून करने का, नाइट में करके रख दिए और जॉगिंग का इसका उसका सब बहाना बना दिए। ये जूस पिया, जूस का निशान मिला खून में, ये है वो है। जूस का तुम लोगों को मिल गया ऑटोप्सी में, बोल रहे हो ऑटोप्सी में जूस का मिल गया, ठीक है, जूस का मिल गया। उसको पीटे, गन स्टेन गन से वार किए, वो नहीं दिखा? नहीं दिखा, राइट?
और किसी का फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले पूरे घर में? इतनी सी सोच नहीं है आप लोगों को झूठ बोलते हुए? कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी ये पूछ सकता है हमको, इतनी सी भी नहीं है दिमाग में। कर क्या रहे हैं मुंबई पुलिस? शेम। ये चीज़ जो भी सुशांत का इन लोगों ने किया कांड, दिस इज बियॉन्ड दिशा एंड बियॉन्ड रिया चक्रवर्ती. I didn't speak about her yet. I will. Maybe in my next video, I'll do about Riya. This is beyond two ladies. Beyond this, Riya, she must be just a pawn. Pawn. Do you understand? It's a pawn. Like मोहरा बोलते हैं. चेस का एक कॉइन होता है ना, वैसा मोहरा बोलते हैं. She's just that. She's not a VIP. She's not. Why, when the whole Mumbai police, film fraternity, politicians are protecting her, that means somebody planted her. If she is caught by somebody, she will reveal everything to save herself. She must be thinking like they're going to protect her. That's why she's stubborn, right? When CBI comes in, कोई माइकल लाल पकड़ेगा, उस दिन कोई उसे बचा नहीं पाएगा. उस दिन वो मुंह खोलेगी. उसके बारे में बात करेंगे शांति से. टाइम है, बात करेंगे. और बॉलीवुड लॉबी का मैं क्या बोलूँ? बोलने का लायक कुछ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो लायक ही नहीं है सारे के सारे लोग. इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम बोल रहे हैं ना. मैं भी बोल रही थी ना, लायक नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. वो एक अकेली लड़की डट के खड़ी रही. टीवी एक्ट्रेस होने के बाद भी अंकिता लोखंडे खड़ी रही. आई सल्यूट दीज टू लेडीज. कीर्ति सनन अभी खोल रही है मुंह. On top of everything, Sushant's family, उनको I think they must have been threatened to death, you know, क्योंकि उनके सारे लड़कियां हैं, लड़कियों का फैमिलीज है, बच्चे हैं. एक बूढ़े बाप को जाके थ्रेटन करेंगे तो वो करेगा क्या? हाथ बंधे हुए हैं बच्चों के लिए. अभी क्या करेगा वो? You know what I mean, right? अभी उसका फैमिली खुल के आ रही है क्योंकि जनता का सपोर्ट है उनको. जब देख रहे हैं इतने सारे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो अभी हम डर के बैठेंगे, कोई फ़ायदा नहीं. जब जनता है सपोर्ट करने के लिए, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता. अभी टच भी नहीं कर सकते. टच करेंगे उनको, गए वो लोग. आई एम टेलिंग यू, they're gone. So nobody is gonna touch them. वो कहीं से भी लोगों को बुलाएंगे, कुछ भी कराएंगे, नहीं कर सकते हैं. लोग ऐसे जुड़े हैं ना अभी ना. अब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे? दिल्ली में जो कराए हिंदू मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम, they made them to fight. They made them to fight and they killed those two husband and wife, right? Just to kill them, they killed more than 300 people. More than, so many people were injured. So many properties were destroyed. So this is the only thing they can do. अब हमको क्या करना है? ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ख़त्म करना है. पहले फर्स्ट थिंग वो ख़त्म करो. एक घर के बच्चे हैं सब लोग. जब तक हम करके सोचोगे ना, थिंक लाइक वी, नॉट आई, मी, नो, वी. जिस दिन वो वी को हम लोग समझेंगे ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी. याद रखना मेरी बात.
सिर्फ इस केस में नहीं, कोई भी जनरली, आई एम सेइंग दिस जनरली वी को याद रखो, आई और मी को नहीं। आई और मी हार्मफुल है, वेरी वेरी हार्मफुल। मी नो, आई नो, वी, जब वी करके खड़े रहेंगे ना, दैट्स इट। कोई महाराष्ट्र का पुलिस नहीं, कोई महाराष्ट्र का पॉलिटिशियंस नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कोई कहीं बैठा हुआ डॉन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम बह जाते हैं इमोशंस में। कोई किसी ने बोल दिया वो हिंदू को मार दिया, सारे हिंदू चले गए मारने, सोचते नहीं। सारे मुस्लिम चले गए हिंदू को मारने, सोचते नहीं। ऐसा नहीं करो ना। जब तक आप लोग करते रहोगे ऐसा, ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। ऐसे कितने सुशांत को मारेंगे, ऐसे कितने वो लड़की मर गई, वो क्या नाम है उसका, सुनंदा पुष्कर, वो मर गई, मार दिए, मर गई क्या, मार दिए। ऐसे कितने जर्नलिस्ट को मार दिए, कितने पुलिस ऑफिसर्स को मार दिए, कितने पुलिस ऑफिसर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकाते हैं। सांगलिया नते, आपको याद होगा तो। और कर्नाटक का एक रामानुजम, पी रामानुजम, इफ़ यू नो, इफ़ एनीबडी नो अबाउट दीज टू, क्या ऑफिसर्स थे। हमको ऐसे लोग चाहिए। शेषन तो जानते ही है आप लोग, वैसे ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे फालतू लोग नहीं। आप ओटी क्यों करते हो ऐसे लोगों को? ओके, हो गया। अभी रिया इतने दिन चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। अब आके अनडेटेड सुशांत सिंह का मैसेज शेयर कर रही है। वो उसको डांट रहा है, डेविल बोल रहा है, ईविल बोल रहा है, व्हाटएवर ईविल बोल रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा प्रभु को। ठीक है, सो माय पॉइंट इज, अगर उसका जो रिया चक्रवर्ती का ईमेल किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, मैंने नहीं पोस्ट किया था, वो बोल रही है, तो ये मैसेज कैसे सच हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है। उसका गलत है, किसी और ने कर दिया। अगर ये सुशांत सिंह ने करके दे दिया, इसको मैसेज कर दिया था, कैसे? इन लोगों पहले से प्लान करके उसको फैमिली से तो दूर कर दिए, और ऊपर से प्रियंका, सुशांत का बहन, उसके ऊपर उसने उसका कान भरे कि शी मिसबिहेव्ड विथ मी, शी ट्राई टू मोलेस्ट मी। खुद लॉयर है वो, एडवोकेट है, उसके ऊपर ही इसने किया, क्योंकि वो एडवोकेट है, ज़्यादा दिमाग है। पहले इसको दूर करो सुशांत से, समझे आप? तो उसके दिमाग में कूड़ा भरने लगे ये लोग, और उसको क्या दे रहे थे हमको तो पता नहीं। अगर मुझे नाम मिल गया, क्या मेडिसिन उसको खिला रहे थे, ड्रग का, या आई मीन व्हाट काइंड ऑफ medical drug they were giving him, we can find out, what is the dose and all, we can find out something with that. But anyways, so these are my points. जो घर में थे वो सबको जाने दे दिए, उस दिन रात को जो थे जाने दे दिए, क्योंकि जाने देना ही था। क्यों जाने दिए करके पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि दैट इज़ द प्लान, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। सबको भेज दो, सबको सेफगार्ड कर दो। ओके, नेक्स्ट थिंग, लास्ट, मुंबई पुलिस सबको बुलाने लगी। जब क्वेश्चंस उठाए जनता ने, अर्नब ने, कंगना ने, तो आई वॉश करने के लिए सबको बुलाने लगे। मीडिया, क्या बोलते हैं, बॉलीवुड वाले, सारे बॉलीवुड के लोग एक एक करके
इसको बुलाया, उसको बुलाया, रिया को बुलाया, सबको, पूरा सबका आई वॉश किए, हो गया। एंड सबको बोले इफ़ यू नो समथिंग कम एंड टेल अस। वो इसलिए किसी के पास कोई सबूत नहीं रहना है, सबूत मिटाना था उनको, किसके पास को जो है क्या है उसे मिटाना था। दे जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एवरी फ्रिकिंग थिंग, नहीं रहना कुछ भी किसी के पास भी। देखते हैं कैसे ये लोग पहुंचेंगे, राइट। क्या हुआ, फाड़े हुए पन्ने तक ले आए, फाड़े हुए पन्ने तक ले आए डायरी के, और होगा और ले आएंगे। सीबीआई आने नहीं दे रहे थे, सीबीआई बनता ही नहीं, ये बोला था जैन, मिस्टर जैन, इसके शो में, अर्नब जी के शो में, राइट। अर्नब जी बोला था ना वो। मैं इज़्ज़त नहीं दे सकती उस आदमी को, मैं ऐसी नहीं हूँ वैसे, मुझे बड़े बुजुर्ग का ख्याल है, बहुत ही वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड इंसान हूँ, बट उस आदमी के लिए नफ़रत सी हो गई मुझे, नफ़रत सी, बिकॉज ही ओपनली सेड सीबीआई तो बनता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुकर रहा है अभी, मैंने तो बोला ही नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो भूल जाते हो क्योंकि आप सच नहीं बोलते हैं ना। सच बोलोगी तो याद रहेगा, झूठ बोलोगी तो कैसे याद रहेगा। सबको बोल रही हूँ, जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अगेन स्टेटमेंट देने में दूसरा कुछ बोल रहे हैं, क्यों? भूल गए, झूठ बोले थे ना, भूल गए। अगर सीधा सीधा सच बोले होते तो वही हर बार बोलते, each and every time. If you speak truth once, that stands forever. नहीं हो रहा इनसे। वो संदीप 10 बार अपना बयान बदल रहा है। I don't know about the others. Every other minute they are changing. The door, yes, I forgot to say something. Door was not broken first day. I noticed that. Lock was not broken, handle was not broken. Later, after a day or within a day, they must have did something. And जब इतना हंगामा चल रही है मुंबई पुलिस से, मेरा एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ एक सवाल, कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, एक ही चीज़ पूछूंगी। जब इतना सब कुछ चल रहा है, सबको सब पता भी चल गया है, तो आपको एफआईआर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं किया। उस घर को सील करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कम से कम तब नहीं किए। इंस्टेड पूरा घर खाली भी कर दिए, पूरा घर एम्प्टी कर दिए। इट्स वेकेंट नाउ। कैसे? नामो निशान मिटा दिए उधर का, किसी को कुछ भी नहीं मिलना है, इतनी सी चीज़ भी नहीं मिलना है। कोई बात नहीं, सच अपना रास्ता खुद निकालेगा और खुद निकाल के आएगा, वही पुलिस स्टेशन में आएगा। उस दिन मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, खास मुंबई पुलिस के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे सिर्फ मेरा बात लोगों तक पहुँचानी है। आप देखो, इग्नोर करो, जो करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। एक ही चीज़ चाहिए, हमेशा सच का साथ देना, इंसानियत बरकरार रखना। हमेशा इंसान है हम, इंसानी रहना है। कसाई का काम क्या होता है? काटने का। वो सिर्फ कसाई करता है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। अगर हर कोई कसाई बनने लगेगा कैसे
इंसान है, इंसान रहो. Please stand for truth. CBI for SSR. CBI for Sushant. Let the truth win, and let the truth find the way to Mumbai police station. And Arnabji, hats off to you.